Hi everyone, welcome back to the English online learning class. Today we will study in grammar and the topic is pronouns, its types. Before you have studied about noun, is there any confusion to understand about the noun and the types of nouns? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको कोई confusion है क्या nouns के बारे में? No? Very good. I am happy to hear that. Dear students, today's topic is pronoun. Let's understand what is pronoun. A pronoun is a word used in place of noun. मीन्स pronoun एक ऐसा वर्ड है, एक शब्द है जो यूज्ड होते हैं प्लेस ऑफ नाउन मीन्स नाउन की जगह में, है ना. प्लेस मीन्स जगह, तो नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड की जगह में जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? प्रनाउन बोलेंगे. नाउ सी द एग्जांपल्स. व्हाट इज सेइंग हियर? देयर आर टू passage means short passage. You first of all you read out. Sis first number. Rina is a girl. Rina likes to eat sweets. Rina dance very well. Second number. Rina is a girl. She likes to eat sweets. She dance very well. Now dear students, first of all you tell me which passage, short passage are suitable for you to listen. First number or second number? Second number. Why not first number? Because in this passage always I used Rina, but second number passage में something is different. Yes or no? देखो रीना के प्लेस में मैंने कुछ अलग वर्ड यूज किया है. जैसे फर्स्ट नंबर में क्या है? रीना इज अ गर्ल, इट इज ओके, बट रीना लाइक्स टू ईट स्वीट्स. यहाँ पे मैंने रीना के प्लेस में क्या यूज किया है? सी लाइक्स टू ईट स्वीट. फिर अगेन रीना डांस वेरी वेल, तो मैंने भी क्या है यहाँ पे लिखा है? सी डांस वेरी वेल. सो डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ रीना विच वर्ड आई यूज्ड? सी. तो सी इज अ pronoun. Got it? Now there are 9 types of pronouns. Oh my god, pronouns की इतने पार्ट्स भाग से अब हम तो भूल ही जाएंगे. ऐसे आपके सिर्फ दिमाग में आ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे? अभी हम थोड़े छोटे हैं, है ना. जब when we will study in higher classes, that time we will understood more about pronouns, means the kinds of pronouns. To now we will understand the 4 of pronouns. See, look at here. That first number is personal pronoun, second number reflexive pronoun, third number demonstrative pronoun, fourth number interrogative pronoun, fifth number indefinite pronoun, सिक्स्थ नंबर emphatic pronoun, सेवेंथ में relative pronoun, एट में reciprocal pronoun एंड लास्ट में नाइन्थ नंबर में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव pronouns. So today we will discuss about 4 pronouns, that is personal pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronoun and interrogative pronouns. So first number pronoun, which one this? Now personal pronoun. These pronouns are used for person or things. ये जो pronoun है personal pronoun, ये हम कहाँ यूज करते हैं ना? फॉर पर्सन मीन्स व्यक्तियों के, और फॉर थिंग्स मीन्स चीज़ों के लिए. लाइक क्या है? आई मैं खुद, वी हम सब, यू मीन्स सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. देन ही सी इट और दे मीन्स वो लोग. आपको ये याद रखना है कि ये जो 7 प्रोनाउन है, आई वी यू ही सी इट दे, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है ना. अब क्या है, कभी कभी क्या होते हैं ये जितने जो 7 प्रोनाउंस है ये कभी सब्जेक्ट में भी मीन्स कर्ता के काम करते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट में भी ये यूज होते हैं सेंटेंस में. जो जब ये ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं तो कुछ डिफरेंस हो जाते हैं. तो ये क्या है? आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी. यू का ऑब्जेक्ट यू. वी का ऑब्जेक्ट आस. दे का ऑब्जेक्ट दैम. ही का ऑब्जेक्ट हिम. शी का ऑब्जेक्ट हार. और ईट का ऑब्जेक्ट ईट.
Now see the example. When you will see the example, that time you will understand more. See, I caught the ball. Here is a subject. I is a subject. But please give it to me. यहाँ इस सेंटेंस में क्या है? Me is work at ऑब्जेक्ट, बट ये रिलेटेड टू आई, तो ये जब ऑब्जेक्ट में गया है तो ये किस वर्ड में आए हैं? मी. ओके, so I hope you have understood about this personal pronouns. Now come to the next is reflexive pronoun. Reflexive pronoun क्या है ना? These pronouns are used when the subject and the object same in a sentence. ये जो pronouns कब हम यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स आई और ऑब्जेक्ट में मी, ये सेम हो जाते एक सेंटेंस में. दे आर फाउंड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स. ये अब क्या है? फाउंड किस तरह से हमको देखने के लिए, सॉरी नॉट फाउंड, फॉर्म्ड किस मीन्स कैसे रूप लेते हैं ना? सेल्फ से, SELF और सेल्फ्स. ये अब हम कहाँ यूज करेंगे? यू कैन सी दे लाफ्ड एट देम सेल्फ्स. यहाँ पे दे है और यहाँ पे क्या है? देम सेल्फ्स है. सी डन हर होमवर्क हर सेल्फ. देखो सी का ये सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में क्या है? हार. तो यहाँ पे हमने क्या लगाएंगे? क्या फॉर्म करेंगे? एडिंग सेल्फ और सेल्फ. अब सेल्फ और सेल्फ्स कहाँ लगाएंगे? ये आपको अंडरस्टैंडिंग करने का बात है. सिंगुलर में क्या आते हैं डियर? सेल्फ, SELF. माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ. बट जब हम प्लूरल की बात करते हैं, वी, जैसे वी आते हैं ना, तो हम क्या आ जाएंगे? आवर सेल्फ्स. वी का आस होते हैं तो ऑब्जेक्ट में, बट वहाँ पे हम क्या आएगा? आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स. ओके, क्योंकि ये प्लूरल में बात किया जा रहा है, एक से अधिक है. और यहाँ पे माई मीन्स मैं खुद अकेली हूँ सिंगुलर में, यू भी सिंगुलर में. देन हिम मीन्स ही, एक लड़का, वो भी एकल है, सिंगल है. हार, सी भी सिंगल है. तो इनको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलेंगे. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक साथ एक सेंटेंस में काम करें रहेंगे, है ना, स्टे करेंगे, यूज होंगे, तब वहाँ पे हम एडिंग करेंगे उनकी फॉर्म को सेल्फ और सेल्फ्स देके. गॉट इट? नाउ कम टू द थर्ड नंबर, that is demonstrative pronoun. What is demonstrative pronoun? Now these pronouns used to point out the objects to which they refer. यहाँ पे क्या करते हैं ये pronouns? क्या रेफर करते हैं ना? टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे है, किस तरह की है ना, कितनी दूर है कि पास में है, कितने सारे हैं, ये सब क्या है? पॉइंट आउट करते हैं. सी द एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन, सेम एंड सो. ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेट मीन्स ये पॉइंट आउट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को. नाउ सी द एग्जाम्पल्स, दिस इज अ कार. यहाँ पे एक कार है, इनको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये एक कार है. दीज आर कार्स. आप थोड़ी दूर में हैं, सॉरी अब बहुत सारे कार्स है, तो उन कार को भी मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये सारी कार्स है, ये बहुत सारी कार्स हैं. नेक्स्ट में क्या है? दैट इज अ बोट. वो एक नाव है, थोड़ी सी दूर पे है, बट मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि वो एक बोट है. अब नेक्स्ट क्या है? दोज आर बोट्स. वहाँ पे बहुत सारे नाव हैं जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ. तो दिस और दैट क्या है? पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं, और इनको हम क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे. नाउ फोर्थ नंबर इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है ना? द प्रोनाउंस आर यूज टू इंक्वायर अबाउट द नाउन्स फॉर विच दे स्टैंड. ये इंक्वायर करते हैं कि ये नाउन्स किस लिए स्टैंड है, मीन्स किस लिए खड़े हैं, मीन्स आस्किंग करते हैं, हमेशा पूछते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए. जैसे लाइक एग्जाम्पल, हुज किनके हैं, हु कौन है, वाट क्या है, व्हिच कौन सी है, व्हेन कब है, और हुज किसके.
किन लोगों के हैं. Okay, so see they means always they are asking questions, they were inquire. See what is used for things. अब word जो word है ये किन के लिए यूज होते हैं ना, for things के लिए. And another is which is used for both person और things. वाट तो ओनली थिंग्स के लिए यूज होते हैं, बट विच हम कभी पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज. सी द एग्जाम्पल दैट हुज बुक इज दिस. ये बुक है किन के हैं, है ना, हुज बुक इज दिस. सेकेंड नंबर है विच इज योर फेवरेट गेम. आपके फेवरेट गेम क्या है. तो दे वेर इंक्वायर अबाउट नाउन्स. ये नाउन्स के बारे में पूछ रहे हैं. नाउन तो है बट नाउन किस लिए खड़े हैं ये पूछ रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड interrogative pronoun. So dear students, I hope you have understood about pronoun and 4 types of pronoun. What are they? Personal pronoun, then reflexive pronoun, demonstrative pronoun and interrogative pronoun, and rest of the pronouns we will study in further class. You watch this video again and again to understand about pronouns. Now I am going to send a exercise, that one you do at your home in your copy and send it back to the WhatsApp group. Thank you very much. Have a good day.